So let us start with our today's lecture, which is about loops. So मैं तुम्हारा लें एग्जाम्पल, वो फेमस कर दें तुम्हें, आइए रहेंगे. After listening to the previous lectures, Soumya came to me. He said, "Sir, I want to make one girlfriend." So I asked him, "What is your talent? Do you know how to play guitar?" I said, "No, sir." "What is your CGPA?" He said, "Sir, don't ask." So मैंने कहा फिर, "Do you have bullet?" बोला, "No, sir." Then I can let us write, sir, one love letter, one impressive love letter. So I said, "Okay, what is your plan?" So he said, "I want to write one love letter. In that love letter, see the creativity. I want to write this line: I like you very much." What is the name? Huh? I like it. नहीं बताना सौम्या. चलो फिर कोई रैंडम ले लेते हैं. रुकमनी देवी. ठीक है, रुकमनी देवी. अब कोई ना कोई तो नाम लिखना पड़ेगा ना. नो, नॉट मॉडर्न नेम. So he said, "Let us write one letter in which this line is repeated 100 times." तभी तो लड़कियां इंप्रेस होती है. If we write their name on the walls 100 times, then no, this is not the case. क्यों, वो बुलेट पे पटाखे बजाएंगे तो इंप्रेस नहीं होती? तुमने करके देखा भाई? So the objective of this love letter, in this love letter we want to write this line 100 times to impress the girl. So to help with this, to help in writing this letter, we can take help of computer program. We can write a computer program to print this sentence any number of times. Generally, to do any task repeatedly, we use loops. So now we understood our task. Our task is to write a computer program to print this line 100 times. How to do that? So the first type of loop that we will look into is while loop. While loop. We will write our first program to do this.
while loop. When you write a computer program which will have a loop in it, generally it will have four things: 1, 2, 3, and 4. Whenever you want to make loops, make use of loops, you need to have four things in your code. First is initialization. Initialization. Generally, we take a use of a counter to count how many lines are printed. So we will initialize the counter. Let us say the initial value must be, let us say, equal to 1. Some variable will be equal to 1. After the initialization, we will have some condition, termination condition for termination of loop. For example, the counter should be, let us say in our case, must be less than equal to 100. The counter value must be less than equal to 1. Then we will have an increment or decrement of the counter after each iteration of the loop. And fourth is the repetitive process that we want to do, the process that we want to repeat. Generally, in any code section which is using loops, we will need these four things. So in using the while loop, first thing that you do is, let us say I am writing line equals to 1. This is one variable created, its name is line. While line is less than equal to 100, print I like you very much. Line equals to line plus 1. This is your arrangement or format of using while loop. What is going on here? This thing is the initialization. First, we are initializing the counter, how many lines we need to we are printing. So this is a tracker kind of thing, a counter of how many times a loop will execute. This is the termination condition. This is the code section which repetitively executes itself. In this, incrementation, decrementation is going on here. This is the process we want to, this is the code we want to execute again and again. And while is our, we can say, a keyword. So generally the format is that first we will do some initialization like here we have done, then we do while, then our termination condition, then the repetitive process, and then incrementation or decrementation of the counter. Initialization, termination condition, the code section, the lines that are
repetitively executed. The process we want to execute repetitively, in that we are repetitively incrementing or decrementing the counter. If we do not write this line, then we will never terminate this loop, because the line counter will not get updated. अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा तो क्या होगा कि लाइन नंबर इक्वल्स टू 1, ये वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू रह जाएगी। अगर ये वैल्यू रह जाएगी तो हमेशा ही ये कंडीशन रहेगी ट्रू। लेकिन अगर मैं ये लाइन लिखता हूं, हर लूप के साथ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, धीरे धीरे लाइन जो वेरिएबल है उसका काउंटर बढ़ते बढ़ते एक लूप के बाद 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, ऐसे पहुंचते पहुंचते ये 100 तक पहुंच जाएगा। जब 100 पहुंच जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। दोबारा बताऊं? दोबारा सुन लो भाई। We want to repetitively execute some lines. There are some lines. We want to repetitively execute these lines of code. To repetitively execute these lines, we must have a condition based on which will decide how many times we want to repetitively execute these code. ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, ये जितनी भी लाइंस हैं, लाइन ऑफ कोड, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार इन अ साइकिल। अब वो कंडीशन हमने क्या लगा दी? वो कंडीशन हमने ये लगा दी, कोई भी वेरिएबल काउंटर ले लिया, जो हमने लाइन लिया था, लाइन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये रिपीट होता रहेगा। ये लाइन एक काउंटर बना दिया, उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया, स्टार्टिंग में हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया 1 से। ये चेक किया कि ये लाइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ट्रू है क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 1 है, और यहां पे हम लाइन इक्वल्स टू लाइन प्लस 1 ये कर रहे हैं। तो हर लूप में लाइन जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, 2, 3, 4, ऐसे जाते जाते एग्जीक्यूट होता जाए और ये 100 तक पहुंच जाएगी। जब 100 पे पहुंच जाएगी तो भी ये ट्रू है। जब ये 101 पे पहुंच जाएगी लाइन की वैल्यू, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, इसको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। मींस जो भी हमारा कोड का स्कोप है, ब्लॉक है, वो तब तक एग्जीक्यूट होएगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं है? हाँ, Mari, any doubt? So write this love letter. Or do you want me to write this program? Do you want me to
this program or will you write it of your own? इजी चीज है, किसी टास्क को रिपीटेटिवली करना है, उसका काउंटर लगा दो। भाई लाइन इक्वल्स टू 1 ये तो पहली क्लास में है, लाइन इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ? तुम ये पूछ रहे हो लाइन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है? तो फिर करो तो सही, लिखो तो सही। किस किस को समझ में नहीं आया? और तुम तो ये दोनों ही लेट हो वैसे तो। अगर दो के अलावा सबको समझ आया तो बहुत बड़ी बात। सूर्या, कितनी बार प्रिंट करवाओगे फिर? 10 में मान जाएगी लड़की? देखो सौम्या, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है। वाइल कुछ कंडीशन है, मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। मैंने रिपीटिशन में क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। आई आई लाइक यू वेरी मच। क्या नाम था? रुक्मणी देवी, ठीक है। ये रिपीटेटिवली प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद मैं काउंटर को अपडेट कर दूंगा, लाइन इक्वल्स टू लाइन प्लस 1। कितनी बार प्रिंट हुआ है ये ट्रैक रखेगा। एक बार प्रिंट होएगा तो एक बार ऐड हो जाएगी लाइन में नंबर। और वो कब तक चलाना है हमें? लाइन लेस देन इक्वल टू 1। जब तक लाइन वेरिएबल की वैल्यू जो है 100 तक नहीं पहुंच, 100 या 100 से कम है, तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो व्हाइल का जो अंदर जितने भी लाइंस हैं एक टैब के बाद दिए वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। अरे वाह भैया, अब गिनो बैठ के 100 बारी प्रिंट की है नहीं की। सत्या, तुम आए थे तब तक आ गई थी क्या रुक्मणी देवी, या बाद में रुक्मणी देवी की? इसलिए नहीं समझ में आया। क्रिएटिविटी है, देखो नाम ऐसे ढूंढ के लाने आसान है क्या? आलिया, ये वो नाम तो आसान है। नहीं है? हैं? पॉइंट चाहिए? क्या करवा दो चलो। एक घंटे पहले बोलते क्लास है। हो गया क्या?
सौम्या करें फिर, समझ में आ गया ना सबको? क्योंकि अभी हाँ क्यों 1 से लेके 100 जब तक नहीं हो जाते, 100 भी इंक्लूडेड है, 1 से चल रहा है। समझ में आ गया ना? अभी इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे, फिर मत बोलना कि सर हमारी सिर दुख रहा है, बीच में दर्द हो रहा है, सिर के राइट साइड में दर्द हो रहा है। ठीक है सत्या, वो डिस्प्रिन की गोली लेके आए हो ना? अब मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करते हैं, अभी रुको। अब देखो और बताना क्या क्या हो रहा है यहाँ। ये बताओ क्या होगा इसमें? इसमें इनिशियलाइजेशन क्या हो रहा है? कौन सी लाइन है जो इनिशियलाइजेशन कर रही है? ये सी एमबीए वाली मैडम कौन आ गई तुम्हारे? नहीं, वो सरकारी बंदे तो इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते ना, इसलिए बोल रहा था। क्या बोलते हैं, कोई बोलते हैं? मेरी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं। ये बताओ इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रही है पूर्व यहाँ पे? सामने देख के ही बता दो। रुक तो जाओ भाई, पहली गाड़ी चल रहा है। टर्मिनेशन कंडीशन क्या है सौम्या इसमें? टर्मिनेशन कंडीशन कब तक रुकेगा ये लूप? कौन सी कंडीशन पे रुकेगा? 10 क्या? 10 नंबर पे क्या जाएगा? लेस देन क्या? लेस देन क्या 10? किसका लेस देन 10? रिपीट क्या हो रहा है आकाश इसमें? आई रिपीट हो रहा है। सूर्या, कुछ आउटपुट का है इसका नॉलेज? क्या आउटपुट होएगा? तो इसका आउटपुट क्या होएगा प्रोग्राम का? पिछले प्रोग्राम से थोड़ा सा ही चेंज है। इसका 2-3 चीजें देख लो, इसमें होएगा क्या? I equals to 1 while I less than 10, print I और I equals to I plus 1। ये था ना कोड। सबसे पहले क्या होएगा कि एक वेरिएबल
वेरिएबल बनेगा आई नाम का जिसके अंदर वैल्यू जाएगी 1। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। आफ्टर दैट ये लाइन एग्जीक्यूट होएगी, ठीक है, ये वाली। इसमें ये कंडीशन चेक होएगी, इफ दिस इज ट्रू और नॉट। सो में ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है इस वक्त? क्यों? 1 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन है ट्रू। ट्रू कंडीशन हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट होएगा। एग्जीक्यूट होएगा तो प्रिंट हो गया आई। आउटपुट में क्या लिखा आएगा? 1। उसके बाद क्या ये चीज होगी एग्जीक्यूट, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होएगी आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसका मतलब आई के अंदर 2 वैल्यू चली। देखते हैं, अभी पहुंचेंगे। ये हो गया काम। उसके बाद वापस इस लाइन पे आया, वापस ये कंडीशन चेक हुई। ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है सौम्या? क्यों? तो 2 इज लेस देन 10 ट्रू है। ट्रू है तो ये कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। उसमें सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होएगी तो आउटपुट प्रिंट आई की वैल्यू 2 प्रिंट होगी। उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी, वो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब कि इसकी आई की वैल्यू हो गई। फिर क्या होएगा? 4 कहां से होगा? कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? ये वापस ये एग्जीक्यूट होगी। ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? 3 इज लेस देन 10 ट्रू, ये एग्जीक्यूट होगा। 3 प्रिंट हो गया, आई की वैल्यू अपडेट होगी 4। अब क्या होगा? अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ऐसे तो 9 पे चलेगा। सूर्य क्या होगा अब नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? सेम तो जाएगा ही। 4 हो जाएगा, पहले ही हो जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। पहले चेक होगा, पहले कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। फिर ये एग्जीक्यूट होएगा। इसमें पहली लाइन ये है, प्रिंट आई 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होएगा? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, 5 हो गया। अब क्या होएगा? 5 चेक होएगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो मतलब कि फिर ये एग्जीक्यूट होएगा। क्या प्रिंट होएगा? 5। वैल्यू क्या हो गई? 6। अब क्या होएगा? 6 लेस देन 10 है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। प्रिंट होएगा 6, वैल्यू हो गई इसकी 7। फिर 7 चेक होएगा, 7 प्रिंट हो गया, वैल्यू हो गई 8। फिर 8 चेक होएगा, प्रिंट होएगी वैल्यू 8 की और वैल्यू हो जाएगी 9। फिर 9 चेक होएगा, ट्रू हो गया, 9 प्रिंट हो गया, वैल्यू हो गई 10। 10 चेक होएगा तो क्या होएगा? फॉल्स। ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो इसका जो नेक्स्ट लाइन है वाइल के बाद की, वो एग्जीक्यूट होएगी, जो कि कोई कुछ लिख नहीं रखी हमने। मतलब कि अब ये लूप को टर्मिनेट कर दिया, लूप के बाहर आ गए। इस कोड में कोई डाउट होता है? अभी तक सिर नहीं दुखने लगा तुम लोगों को? तो फिर एक प्रोग्राम बनाओ, उल्टा 10 से लेके 9, 10 से लेके 1 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाओ। अभी तक का जो प्रोग्राम था वो 1 से लेके 9 तक को प्रिंट करता था। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रॉम 10 टू 1 यूजिंग while लूप।
और ये दिखाना मेरे को, वो स्लाइड क्या दिखा रही है वो। अनम्यूट करके गालियां दे दूंगा। मेरा नाम है। हो गया क्या भाई? इनिशियलाइजेशन की लाइन क्या है? आई इक्वल टू 10। वाई टर्मिनेशन कंडीशन क्या है बताओ सोमू। आई ग्रेटर देन 1 चल जाएगा क्या? करे भाई, क्यों इक्वल क्यों? जब यहाँ पे हमने इक्वल टू 10 नहीं किया था तो ये 10 को एक तरीके से टच करके बाहर निकल गया था, लेकिन हमें ये है कि टच करके बाहर नहीं निकलना है, ये इस लूप को एग्जीक्यूट करना है पूरा। इस रीजन से इक्वल टू 1। वैसे उल्टा भी मैं बताऊंगा बाद में कभी, बाकी एक बार यही देखो, ग्रेटर देन 1 करके भी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन छोड़ो। फिर आगे प्रिंट क्या करना है? अगर मैं ऐसे कर दूं आई इक्वल्स टू प्रिंट, आई इक्वल्स टू क्या रखा है फिर प्रिंट के बाद? या ये कर लो, माइनस इक्वल टू 1 भी कर सकते हो। अब क्या होएगा? Navneet, what will happen? Before it was not decreasing. What will happen? What will be the output? 10. 10 will be the output. Wait, wait. Where it will print? First it will print I, then it will do decrementation. सूर्या, क्या होगा भाई यहाँ पे? पहला चीज क्या प्रिंट होएगी? देखो ध्यान से, ऐसे करोगे नासा की वेबसाइट है, कैसे होएगा? एक सेकंड, पहली लाइन ये एग्जीक्यूट हुई, क्या हुआ इससे? इससे क्या हुआ सूर्या? हाँ, आई का वैल्यू 10 हो गया। फिर क्या हुआ? ये कंडीशन चेक हुई। क्या हुआ कंडीशन चेक होने से? ये ट्रू है कंडीशन। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर क्या होगा यहाँ बता दो, क्या होएगा? अब बताओ क्या होएगा? नहीं, अब क्या होएगा नेक्स्ट? इस लाइन में क्या होएगा? मतलब फिर क्या होएगा? ये लाइन एग्जीक्यूट होएगी। फिर क्या प्रिंट होएगा सूर्या? 9 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होएगा? फिर क्या, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होएगी? ये वाली, ये वाली। फिर क्या होएगा? ये ट्रू होएगा या फॉल्स? क्यों? ठीक है, फिर क्या होएगा? वैल्यू 8 होगी। फिर ये तो प्रिंटेड ही पड़ा है, तो फिर प्रिंट होएगा क्या? क्या क्या प्रिंट होएगा? कब से लेके कब तक प्रिंट होएगा? 0 होएगा? बताओ, 0 होएगा या नहीं होएगा?
क्यों होएगा जीरो? जीरो होएगा प्रिंट? करके देख लिया? झूठ बोल रहे हो। हम्म, सिर नहीं दुखने लगा अभी तक? है कस्तूरी, सिर दुखने लग गया? तभी छोड़ेंगे जब तुम नहीं बोलोगी, जब तक तुम नहीं बोलोगे। ठीक है भाई? फिर कर दें कॉम्प्लिकेट इसको, देवाशीष? कर दें भाई? देख लो, फिर मत बोलना कि सर ये क्या है, जिंदगी ऐसी क्यों है, फलाना है। कर दें वो कॉम्प्लिकेट? मेरे को मत बोलना। राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ टू। दो का टेबल होता है, दो का पहाड़ा याद है? ये प्रिंट करवाना है। आसान है, 2 से लेके 20 तक। बेबसीज कैसे कराओगे? एक तरीका तो मेरे को पता है। हो जाएगा क्या मारी? यस, 2 to 20, 2 to 20, the table multiplication table of 2। फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए ये बताओ? रुक तो जाओ, फर्स्ट नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए? लास्ट नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए? कितने अपडेशन से प्रिंट होना चाहिए नंबर्स जो है? और क्या चीज चाहिए तुम्हें? नहीं वो तो फिर भी ठीक है। फर्स्ट नंबर पता है, लास्ट नंबर पता है, कितने से जंप करना है ये पता है, बट है? हाँ 20 तक। तो टर्मिनेशन कंडीशन पता है, इनिशियलाइजेशन पता है, इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पता है, प्रिंट क्या करवाना है ये पता है। 4 चीजें चाहिए आपको। हो गया? इनिशियलाइजेशन क्या करी है? I = 2। सौम्या ठीक है? फिर टर्मिनेशन कंडीशन क्या है? ठीक है सौम्या? फिर प्रिंट क्या करवाया भाई लूप के अंदर? इंक्रीमेंटेशन क्या दिया है? I = 2 I+2। कोई इशू इसमें? सूर्या पहले क्यों नहीं हुआ? ये समझ में आ गया? तो ये बताओ सूर्या भाई,
सूर्य बताओ ये कोड क्या करेगा? हैं? What will this code do? Execute in your registers and tell me what will be the output. Execute करो अपने रजिस्टर में. बताओ भाई, सही है क्या? जे तो 1 से लेके 10 तक जा रहा है, फिर प्रिंट क्यों हो रहा है 5 का पहाड़ा? अब मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं. n equals to int input enter a number. ठीक है, अब बताओ अब क्या होगा? n एक यूजर से नंबर इनपुट करवा दिया. What will happen? हाँ यार, so if I give input 6, then what will happen? Like you have what is the termination condition? You have made this program. हाँ, input 10. हाँ सत्या जी, सच्ची बताओ. लैपटॉप तो नहीं है. योर हेड. आई से चलो, आई इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर ये नंबर. while I greater than. तो ग्रेटर वाला कर दो, फिर ग्रेटर वाला उड़ा दो, ये उड़ा दो. आई इज ग्रेटर देन 0 रख दो. सबसे पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी? सबसे पहले क्या होएगा? यहां देख के बताओ. सबसे पहले लाइन क्या क्या चीज एग्जीक्यूट होगी? प्रोग्राम जब ये चलाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? इतना ज्यादा नशा कर रखा है. पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होएगी? नंबर 1 2 3 4, यही बता दो. फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होएगी तो इससे होगा क्या? इस लाइन से
क्या होगा इस लाइन से? अरे मनप्रीत छेड़ो ना उसको। हाँ बोलो। क्या होगा? किया हुआ है तुमने, 100 बार कर चुके हो। नहीं किया हुआ? क्या होता है? कोई यूजर नंबर डालेगा, उसका एक वेरिएबल बन जाएगा आई। लेट अस से मैंने डाल दिया नंबर 10, पहली लाइन में ये होगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होएगी, वाइल 10 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो फिर ये चीज एग्जीक्यूट होएगी। प्रिंट क्या होएगा? 10। ये लाइन एग्जीक्यूट, प्रिंट हो गया 10। उसके बाद क्या होएगा? आई इक्वल्स टू फ्लोर डिवीजन 2, मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जैसे मान लीजिए 5.0 आएगा, तो ये उड़ा दो, 5 जो है वो आई के अंदर चला जाएगा। भाई डेसिमल डॉट के बाद जितनी भी वैल्यू है वो उड़ा लो, इंटीजर इंटीजर वैल्यू आएगी, बेसिक बात ये। तो आई के अंदर आ गया 5, फिर ये एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट होएगी। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? 0 से क्या? 5 ग्रेटर देन 0। हाँ, ये कंडीशन ट्रू होएगी या नहीं होएगी इस करंट स्टेज पे? क्यों? 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो फिर ये चीज चलेगी, प्रिंट हो जाएगा 5, आई के अंदर हो गया आई का आधा और उसका डेसिमल, मतलब कि 2.5 का 0.5 उड़ के 2 हो गया। फिर क्या होएगा? कंडीशन चेक होएगी, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया 2, उसके बाद वापस डिवाइड हो गया, 2 को डिवाइड किया, उसका जवाब आ गया 1.0, उसका 0.0 उड़ जाएगा, 1 रह जाएगा। ट्रू है या फॉल्स है? फिर प्रिंट होएगा 1, ये डिवाइड हो जाएगा, 1 को डिवाइड करेंगे, 0.5 उड़ गया, तो इसकी वैल्यू बच गई 0। पॉइंट के बाद उड़ना है ना। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो हम नंबर डालेंगे उस वो हर एक स्टेप पे हाफ होता जाएगा, बस उसका जो पॉइंट डेसिमल वैल्यू है वो हमने उड़ा देनी है। अगर सौम्या ये बताओ कि अगर मैं इसकी जगह ये यूज करता हूं डिविजिबल बाय, तो क्या होएगा? तो फिर उससे प्रोग्राम में क्या, एग्जीक्यूशन में क्या चेंज आएगा? बिल्कुल, पहले 10 होएगा, फिर 5 होएगा, फिर 2.5 होएगा, फिर 2.5 का आधा कितना है? 1.25 आएगा, उसका आते आते 0.001 ऐसे आता जाएगा। आप समझ रहे हो? जाता जाएगा जाता जाएगा, हालांकि माइन 0 तक तो नहीं पहुंचेगा, पर फिर भी ये काफी लंबा रन खींचेगा। उसको उड़ाने के लिए फिर अपने ये कर दिया कि ये फ्लोर वाला यूज करो, ताकि जो वो वैल्यू है डेसिमल के बाद वो उड़ जाए। अब बताओ इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत है तो करो भाई सवाल। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू print the sum of integers 1 to 150 इंटीजर तो नहीं, 1 से लेकर 150 जो इंटीजर्स हैं उसका सम प्रिंट करना है। 1 + 2 + 3 प्लस करते करते 1 1 + 2 +
इसको while लूप से प्रिंट कर दो इसका जो रिजल्ट है। ग्रेटेस्ट among 10 inputted numbers। देखो इसको ध्यान से, दूसरे वाला, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 10 इनपुटेड नंबर्स। 10 नंबर इनपुट होंगे, वो इनपुट भी लूप में करवा लेना और चेक भी कर लेना लूप में ही, एक ही कंडीशन से लूप में ही चेक हो जाएंगे। फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर। फैक्टोरियल पता है ना, अगर कोई नंबर n इनपुट किया है तो n इंटू n माइनस वन, ऐसा ही होता है ना, -2 ठीक है। चेक इफ ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। राइट है, ये 4 प्रोग्राम समझ गए। पहले वाला क्या, लूप चला लो 1 से लेके 150 का, उसके जो नंबर्स हैं वो कर दो ऐड। जैसे सम इक्वल्स टू 0 फॉर वाइल या आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल टू 150, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। लास्ट में फिर प्रिंट सम। बताओ पहला हो जाएगा। एनी डाउट इन दी फर्स्ट? सूर्या नहीं होएगा। दूसरा, ग्रेटेस्ट अमंग 10 इनपुटेड नंबर्स। तीसरा हो जाएगा क्या, फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर। तीसरा होएगा, तीसरा देखो, टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर। सारे प्रोग्राम टेढ़े हैं ये, एक एक में तुम्हारा दिमाग खराब होएगा। जाओ छुट्टी है। सर्च कर लेना, फ्राइडे को ही करेंगे हैं। हाँ सैटरडे को कर लेंगे, इस पे दिमाग लगाना, बिकॉज ऑल आर यूनिक प्रॉब्लम्स।